شاہدہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت ہی سے ریٹائر ہو جائے گا۔ اس کا تعلق ان مردوں میں ہوتا تھا جو حالات کی چکی میں پس پس کر جمالیاتی حسن کو خیرباد کہہ چکے ہوتے ہیں اور ہر کام مشینی انداز میں کرتے رہتے ہیں۔ غصہ اور چڑچڑاپن ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی ان کے ساتھ رہنے والوں کو ہر وقت ایک ذہن اذیت سے دو چار رکھتی ہے۔ وہ خود پر سختی اور بدمزاجی کا ایسا خول چڑھا لیتے ہیں کہ لوگ ان سے کسی بھی قسم کی باتیں کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ شاہدہ کا باپ سخت طبیعت کا ضرور تھا مگر گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ جو کچھ کماتا تھا بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ اسے بیوی اور بیٹی سے محبت تو بہت تھی مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ شاہدہ نے جب یہ کہا کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی تو اس نے دفتر سے قرض لے کر کالج میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا تھا۔ شاہدہ کی ماں بھی اپنے کام سے کام رکھتی اور شوہر سے دوسری بیویوں کی طرح گھل مل کر نہیں رہتی تھی۔ اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے اس نامناسب رویے کی وجہ اس کے آفس کے حالات تھے جہاں بہت زیادہ ملازموں کی وجہ سے ترقی کے آثار معدوم تھے۔ سالوں ہو گئے تھے اور ابھی تک اس کی پروموشن کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ اخراجات بڑھتے جا رہے تھے اور تنخواہ وہیں کی وہیں تھی۔ باپ کے رویے کی وجہ سے شاہدہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی اور وہ گھر میں ہوتا تو وہ سر پر دوپٹہ ڈالے خاموشی سے کسی کام میں لگی رہتی۔ شاہدہ کو اپنی غربت اور کم مائیگی کا بہت احساس تھا۔ اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا۔ اس غربت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، وہ دوسری لڑکیوں کو دفتروں اور مختلف اداروں میں کام کرتا دیکھتی۔ اسے ان کے ٹھاٹ باٹ نظر آتے۔ وہ اونچی ہیل کی سینڈل پہنے کھٹ کھٹ چلتی پھرتی نظر آتی اور گٹ پٹ انگلش بولتی تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ وہ کسی پر ظاہر تو نہیں کرتی تھی مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے اپنی غربت، اپنا ماحول اور ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ترسنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے جیب خرچ سے پیسے بچا بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا تھا۔ یہ موبائل نہایت چھوٹا سا تھا، فنکشن بھی کچھ نہیں تھے۔ نمبر ملا کر کسی سے بات کر لو، آپ پھر FM ریڈیو سن لو، اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ اس نے اپنا نمبر اپنی چند گہری سہیلیوں کو بھی دے دیا تھا۔ محلے میں اس کی ایک بچپن کی سہیلی بھی تھی اور اس کا نام فرخندہ تھا۔ دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی تھیں۔ فرخندہ کا باپ نہیں تھا اور ماں نے ایک دھاگا بنانے کی فیکٹری میں نوکری کر کے اسے پالا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ بچوں کے ایک اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر چل بسی تھی اور اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اپنی مصروفیات کے باوجود دونوں اب بھی وقت نکال کر کبھی کبھی ایک دوسرے سے مل لیا کرتی تھیں۔ آج بھی وہ عید کی کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی تھیں۔ شاپنگ کر کے وہ گھر لوٹی تو ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ وہ ابھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اٹینڈ کرے کہ نہ کرے۔ اس نے بات نہیں کی۔ کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے پھر کال۔ اس مرتبہ اس نے ادھر دیکھتے ہوئے اوکے کا بٹن دبا دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے نہایت نرمی اور مہذب انداز میں کہا، شاہدہ پلیز میری بات سنے بغیر فون بند نہیں کرنا۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے فون کو ہی آف کر دیا۔ فون کرنے والے کا لہجہ رہ کر اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کون تھا جسے اس کا نام بھی معلوم تھا۔ اس کی تو آج تک کسی لڑکے سے بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، نہ اپنوں میں نہ غیروں میں۔ پھر اس لڑکے کو اس کا نمبر کیسے ملا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ وہ کب تک فون بند رکھتی؟ رات کو کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے اس نے موبائل آن کر لیا۔ پھر اس نے بات ختم کی ہی تھی کہ اسی نمبر سے پھر فون آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کال اٹینڈ کر لے مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے اپنی کئی سہیلیاں یاد آئیں، گھر والوں سے چھپ کر ان کی بھی لڑکوں سے دوستی تھی اور سب کی سب ان دوستیوں پر بہت خوش تھیں۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات کہ وہ سب لڑکیاں بولڈ تھیں، اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے بھی بولڈ بن جانے کے فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ کون سا وہ اسے فون پر کھا جائے گا، معلوم تو کرنا چاہیے حضرت کون ہے اور کتنے پانی میں ہے اور کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا اور 2-3 دنوں میں ہی اسے پتا چل گیا کہ اس کا نام ناصر ہے اور اس نے شاہدہ کو کسی مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہ سکی کہ اس سے پوچھے کہ اسے اس کا موبائل نمبر کیسے پتا چلا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک امیر
बाप का बेटा है और उसके कारोबार में हाथ बटाता है। इसने जब इसे पहली मर्तबा देखा था तो वो इसे इतनी अच्छी लगी कि इसने सोच लिया कि इसी से शादी करेगा। शादी की ख्वाहिश कोई बुरी बात नहीं थी। शाहिदा ने इस बात का बुरा नहीं मनाया, मगर अपने तई इसने एक बड़ी अक्ल की बात कर दी। शादी ब्याह कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं। मैंने कौन सा आपको देखा है जो अब से शादी कर लूं? उसके कहने की देर थी। अगले रोज वो इसके कॉलेज पहुंच गया। इसकी छठी से कुछ देर पहले इसका फोन आ गया। मैं कॉलेज के गेट के सामने ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठा हूं और दुआ कर रहा हूं कि तुम्हें पसंद इजा है ना। पसंद आया तो फिर मेरे सामने खुदकशी के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं, कहो तो किस्म खा लूं। शाहिदा सनवटे में आ गई। वो इतनी अहम है कि कोई इसके लिए खुदकशी करने पर भी तैयार हो सकता है। इसकी एक क्लास फेलो करीब आ गई थी। इसने मजीद कुछ कहे फोन बंद कर दिया। छठी के बाद वो गेट से बाहर निकली। सामने ही वो कार में बैठा नजर आया। वो इसे पहचानता था। इसे देखकर मुस्कुराया और गाड़ी के दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। इसे देखकर वो मबहूत रह गई। वो निहायत साफ रंग का, लंबे कद का एक स्मार्ट लड़का था। उसके बाल उसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे। गिले में ढीली ढाली टाई झोल रही थी और जिस्म पर मौजूद सूट खासा कीमती दिखाई देता था। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा कर जल्दी से कॉलेज की बस में चढ़कर अपनी सीट पर बैठ गई। इसने चूर नजरों से अपने अर्द गिर्द देखा। कोई लड़की भी इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं थी। उनकी अक्सरियत अपने मोबाइलों की तरफ मुतवज्जे थी। इसने खिड़की से बाहर देखा। वो अभी तक वहीं खड़ा था। नासिर इसे बेहद पसंद आया था। उसके बात करने का अंदाज बहुत दिलकश था। वो इतनी नरमी और अपनाइत से बात करता था कि जी चाहता था कि वो बोलता रहे और वो सुनती रहे। इसने अपनी कई सहेलियों के बुआए फ्रेंड्स की मोबाइलों में तस्वीरें देखी थीं, पर खूबसूरती में वो नासिर का उशर अशीर भी नहीं थे। घर पहुंचकर भी वो नासिर के ख्यालों में ही गुम थी। इसने आईने में अपनी शक्ल देखी। इसे लगा के वो भी किसी से कम नहीं है। नासिर यकीनन इसकी खूबसूरती से मरूब हो गया था। उसके जदीद अंदाज के कीमती कपड़े और शानदार गाड़ी बता रही थी कि वो किसी अमीर बाप का बेटा है। इसके इल्म में ये बात थी कि अमीरजादों की दिली ख्वाहिश होती है कि उनकी बीवियां किसी फिल्मी अदाकारा की तरह हुसैन और जमील और स्मार्ट हों, ताकि पार्टियों वगैरह में दूसरे मर्दों पर रोक पड़ सके। अपनी बेवकूफ़ी और कम फहमी की वजह से शाहिदा नासिर की खूबसूरती और उसकी अमारत के जाल में फंस चुकी थी। अब हर दम इसे नासिर के फोन का इंतजार रहने लगा। एक रोज नासिर ने इसे तसल्ली दी कि वो कभी इस बात से परेशान ना हो कि इसका ताल्लुक गरीब घराने से है। इसने इसे ये भी यकीन दिला दिया था कि वो बहुत जल्द अपने घर वालों को रिश्ते के लिए इसके घर भेजेगा। शाहिदा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अपनी खुशी को छुपाते हुए इसने मसनूई फिक्रमंदी से पूछा, अगर शादी इतनी जल्दी हो गई तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? इसकी बात सुनकर नासिर हंस कर बोला, फिर तुम अपने बच्चों को पढ़ाना। इसकी बात सुनकर शाहिदा शर्मा गई। नासिर ने फिर कहा, यकीनन तुम ये सुनकर शर्मा गई होगी। काश मैं तुम्हें शर्माता हुआ देख सकता। देखो, तुम मना मत करना। मेरे पास एक स्मार्टफोन बेकार पड़ा है। अगर कभी मिले तो वो मेरी तरफ से कबूल कर लेना। मैं इसमें नई सिम भी डलवा दूंगा ताकि तुम बेफिक्री से तन्हा में इसे इस्तेमाल कर सको। मेरा दिन तो किसी न किसी तरह गुजर जाता है, मगर रात को तुम्हारी बहुत याद आती है। अपनी कुछ तस्वीरें भी मुझे भेज दिया करना जब तक शादी नहीं हो जाती। उन्हें देखकर ही दिल बहला लिया करूंगा। और हाँ, शादी के बाद तो मैं कम से कम 1 माह तक काम पर नहीं जाऊंगा ताकि हर वक्त तुम्हें ही देखता रहूं। बस एक बात से मेरी ढारस बंधी रहती है कि थोड़े दिनों की ही तो बात है, फिर तो हमारी शादी हो ही जाएगी। ये इससे अगले रोज की बात है। वजाहत का बाप अपनी बीवी को लेकर उनके घर अधम का। वो शाहिदा के बाप का बचपन का दोस्त था। इत्तेफाक की बात थी कि सालों पहले दोनों दोस्तों की शादियां भी चंद रोज के फर्क से आगे पीछे हुई थीं। इस जमाने की रस्म के मुताबिक दोनों दोस्तों ने तय कर लिया था कि अगर एक के घर लड़का और दूसरे के घर लड़की हुई तो वो इन दोनों की शादी करके अपनी दोस्ती को मजीद मजबूत कर लेंगे। इसके दोस्त के हाँ तो शादी के पहले साल ही बेटा हो गया था, मगर शाहिदा 5-6 साल बाद पैदा हुई थी। वैसे तो दोनों दोस्त जिंदगी की मसरूफियात से वक्त निकाल कर महीने 2 महीने बाद एक दूसरे से मिल लिया करते थे, मगर इस दफा बीवी के साथ आमद का मकसद यही था कि बरसों पहले जो बात हुई थी इसको पूरा किया जाए। दोस्त के बेटे का नाम वजाहत था और वो किसी सरकारी इदारे में मुलाजिम था। शाहिदा का बाप इस रिश्ते पर न सिर्फ राजी था बल्कि बहुत खुश भी था। उसके अलावा ये बात भी थी कि दोनों दोस्तों ने इसके बारे में अहद भी किया हुआ था और वो अहद पूरा करने का वक्त आ गया था। अपनी सख्त गिर तबीयत की बना पर इसने घर में किसी से मशवरे करने की जरूरत भी ना समझी और अपना फैसला बीवी को सुना दिया। शाहिदा की शादी मेरे दोस्त के बेटे वजाहत से होगी। माँ तो सीधी साधी एक मशरकी औरत थी और
शौहर से डर कर रहती थी। इसने इसके फैसले पर सर झुका दिया और शाइस्ता को बाप के फैसले से आगाह कर दिया। यह खबर सुनकर शाहिदा पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। इसने आंखों में आंसू भर कर माँ से इस बात पर एहतजाज किया, अपनी अधूरी पढ़ाई का बहाना बनाया, मगर उसकी माँ ने हाथ खड़े कर दिए। मैं तेरे बाप से इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकती, वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। अगर तुझे कोई एतराज है तो जाकर इसी से बात कर। ये बात बस याद रखना कि माँ बाप जो भी करते हैं औलाद के हक में बेहतर ही होता है। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि बाप से बात करती। वो दिल महसूस कर रह गई। एक रोज उसकी माँ और बाप वजाहत के घर जाकर इसे देख भी आए। वजाहत दोनों को बहुत पसंद आया था और यूं ताबूत में आखिरी कील भी गुड़ गई। शाहिदा ने फौरी तौर पर नासिर से राब्ता किया और ये खबर इसे सुनाई और बोली, नासिर अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो, अपने घर वालों को हमारे घर भेज दो, शायद अबुआ मान जाए। लम्हा भर को तो नासिर चुप हो गया, फिर बोला, मेरी उम्मी तो अपनी बहन से मिलने दुबई गई हुई है, 2-3 महीने वहीं रहेंगी, तो फिर मैं क्या करूं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि अपने अबुआ के सामने जुबान खोलूं। वो बेबसी से बोली। इसकी बात सुनकर दूसरी तरफ खासी देर तक खामोशी रही। फिर नासिर की आवाज, तुम शादी करने से मना कर दो, ये मैं नहीं कर सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। ये कहते हुए शाहिदा की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे अबुआ को नहीं जानते, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। शाहिदा तुम मुझे ठुकरा रही हो। नासिर ने किसी कदर गुस्से से कहा, अच्छा ऐसा करो कि मौका देखकर मुझसे कहीं मिल लो। मेरी बड़ी बहन सदर के इलाके में रहती है, हम दोनों उनसे मिलने चलेंगे, हो सकता है कि वो कोई हल निकाल ले। इससे पहले भी नासिर ने इससे कहीं बाहर मिलने को कहा था, मगर अपनी फितरी बुज़दिली की वजह से वो इस पर राजी नहीं हुई थी। इस मर्तबा भी वो नासिर के मुतालबे को साफ टाल गई। ज्यादा बेहतर ये होगा कि तुम अपनी बड़ी बहन को हमारे घर भेज दो ताकि वो रिश्ते की बात चलाएं। शाहिदा ने 2 टोक लहजे में कहा, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। इसकी बात सुनकर नासिर ने कहा, मैं चाहता हूं कि बाजी तुमसे एक दफा मिल ले, फिर हम आइंदा का लाहा अमल तय कर लेंगे। सॉरी नासिर, ये मैं नहीं कर सकती, मुझे कॉलेज जाने के अलावा कहीं और जाने की इजाजत नहीं है, इसने बेबसी से कहा। इसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। इसके बाद नासिर ने खुद से फोन नहीं किया। इसने कई बार इससे राब्ता करने की कोशिश की, मगर उसकी हर दफा यही रट होती कि वो इसकी बाजी से मिलने के लिए आमादा हो जाए। शाहिदा एक सीधी साधी और डरपोक किस्म की लड़की थी। वो इस बात पर राजी नहीं हुई। 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे, इसकी शादी बड़ी सादगी से हो गई। शादी के बाद भी नासिर उसके दिल से नहीं निकल सका था। इसे इस बात का भी अफसोस होता था कि नासिर ने इससे शादी के लिए जरा सा भी ताउन नहीं किया था। माँ अगर अपनी बहन से मिलने दुबई गई हुई थी तो वो अपनी बाजी को उनके घर भेज सकता था। दिन गुजरते रहे और अब उसकी शादी को हुए 3 माह बीत चुके थे। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद इसके दिल में वजाहत के लिए कोई जगह ना बन सकी थी। वो ना इससे बात करती थी, ना इसको देखती थी। वो काम पर चला जाता तो इसे एक इत्मीनान का एहसास होता, वो काम से घर आ जाता तो इसे बेकुल्ली सी महसूस होने लगती। इसके रवैये से वजाहत हैरत ज़दा तो था, मगर इस सिलसिले में इसने आज तक कोई सवाल जवाब नहीं किया था। इसे वजाहत से नफरत तो नहीं थी, मगर वो इससे मोहब्बत भी नहीं करती थी। वजाहत भी जाने किस मिट्टी का बना था कि इसकी बेइल्तिफात और नजर अंदाजी पर कोई हर्फ शिकायत जुबान पर नहीं लाता था। इसने शाहिदा से शादी अपने बाप के कहने पर की थी। इसे अपने बाप से बेहद मोहब्बत थी, क्योंकि वो इसके साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह रहता था। बाप की खुशी के लिए वो घर में यही जाहिर करता था कि वो इस शादी से बहुत खुश है। शाहिदा बिलाशुबा हसन और जमाल में यकता थी। सर्वकद गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुनासिब दहाना, मुस्कुराती थी तो बहुत ही प्यारी लगती थी। हंसती थी तो गालों में गड़े भी नहीं पड़ते थे, जिसकी वजह से हंसते हुए और भी अच्छी लगती थी। इससे शादी करके वजाहत बहुत खुश था। वो एक शर्मीली तबीयत का लड़का था, इसलिए शादी से पहले इसकी जान पहचान किसी लड़की से नहीं हो सकी थी। एक तो बीवी खूबसूरत और चंदे आफताब चंदे महताब थी, दूसरी बाप की पसंद की थी। वजाहत बहुत ही मतमियन था, मगर शादी की रात को ही वजाहत को अंदाजा हो गया कि बीवी खोई खोई सी मिली है। इसने ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि घर वालों से दूरी की वजह से ऐसा होगा। हफ्ता गुजरा तो बर्फ फिर भी नहीं पिघली। ऐसा मालूम देता था कि जैसे शाहिदा को दुनिया की किसी चीज से दिलचस्पी नहीं है। वजाहत ने यह बात भी नोट की कि वो इसको खुद से मुखातिब नहीं करती थी। वो कोई बात करता तो जवाब दे देती, वरना खामोश बैठी रहती। इसकी माँ से इसका रवैया अलबत्ता दूसरा था। उसके पास बैठी होती तो खुद से भी बातें शुरू कर देती थी। बहरहाल माँ और बाप दोनों को बहू पसंद आ गई थी। वजाहत ने माँ से भी शाहिदा के ना मुनासिब रवैये के बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा था। वजाहत नहीं चाहता था कि शाहिदा के बारे में कोई मनफी बात करके घर की खुशियों को फिक्रमंदियों में बदल
दे इसे दुनिया वाली चालाकियां भी नहीं आती थीं कि वो शाहिदा के इस रवैये के मुतालिक अंदाजे कायम करता। दो एक दफा इस पर झुंझलाहट भी तारी हुई और दिल चाहा कि इससे पूछे कि वो यूं दूर क्यों रहती है, मगर मुमकिना बदमज़गी की वजह से वो खामोश ही रहा। इन तमाम बातों के बावजूद वो इसे बहुत अच्छी लगती थी। एक दो दफा इसने इससे अच्छी लगने वाली बात का इजहार भी किया, मगर रद्द अमल में इसका झुका हुआ सर और एक उंगली से बिस्तर की चादर पर खींचती लकीरें ही देखने को मिले। शाहिदा के इस रवैये को देखकर उसकी हिम्मत टूट गई और इस ने भी खामोशी की राह अपना ली। शाहिदा के रवैये की वजह से वो कोशिश करता कि ज्यादातर वक्त अपने दफ्तर में ही गुजारे। छठी वाले दिन वो देर तक सोता और उठने के बाद दोस्तों के पास चला जाता। इस के बारे में मशहूर हो गया था कि वो दुनिया का वाहिद शौहर है जो शादी के शुरू के दिनों में भी दोस्तों को इतना टाइम देता है, वरना दूसरे तो इन दिनों मंजर से ही गायब हो जाते हैं। शाहिदा अपनी माँ के घर चली जाती तो वजाहत एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस करता। शाहिदा माँ के घर जाते वक्त बहुत खुश नजर आती थी और वापस ससुराल आते हुए ये खुशी गायब हो जाती थी। वजाहत ये चाहता था कि वो बस हर वक्त इसकी आंखों के सामने ही रहे, बात करे ना करे, दिखाई तो देती रहे। इसके जाने से इसके दिल पर एक उनकही पजमुर्दगी तारी हो जाती थी। इसकी समझ में नहीं आता था कि क्या करे। कभी कभी वो झंझला भी जाता। आज वजाहत शाहिदा को इसकी माँ के घर छोड़ने आया। इसकी माँ अपने दामाद से बड़े तपाक से मिली और बहुत सी दुआएं दें। इतनी देर में शाहिदा इसके लिए चाय बना कर ले। वो चाय पीकर खामोशी से रवाना हो गया। वो इसे छोड़ने दरवाजे तक भी नहीं वजाहत चला गया तो हर माँ की तरह शाहिदा की माँ ने भी ये अंदाजा लगाने की कोशिश की कि बेटी ससुराल में खुश है या नहीं। वैसे तो इसकी माँ जब भी इससे मिलने के लिए इसके ससुराल जाती थी वो महसूस करती थी कि इसकी सास ससुर का रवैया शाहिदा के साथ ठीक ठाक ही है। अलबत्ता इस बात पर इसे हैरत होती थी कि वो वजाहत का बिल्कुल तज़किरा नहीं करती थी। इस बात से इसकी माँ के दिल में तशवीश की एक लहर दौड़ जाती, मगर वो सोचती कि एक आध बच्चा होने के बाद वो बदल जाएगी और अपने मियाँ के करीब हो जाएगी। शायद नए माहौल की वजह से वो ऐसी हो गई हो। शाहिदा जब भी घर आती थी इसकी माँ को बहुत खुशी होती थी। वो आज भी थोड़ी देर तक इसके पास बैठकर बातें करती रही, फिर दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। शाहिदा टीवी खोल कर बैठ गई। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी थी। अचानक वो हैरत से गुम होकर रह गई। टीवी में नासिर को दिखाया जा रहा था। उसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थीं। डर और खौफ उसके चेहरे से आया था। उसके साथ उसके 4 साथी भी इसी हालत में खड़े थे। उन साथियों में एक लड़की भी थी जिसने अपने चेहरे को चादर से छुपा रखा था। पास ही कुर्सियों पर साइबर क्राइम की टीम के अरकान बैठे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डिप्टी डायरेक्टर इस वाकया की तफसीलात बता रहा था जिसकी वजह से इन लोगों को पकड़ा गया था। शाहिदा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कानों में साई साई सी होने लगी थी। इसने जल्दी से उठकर दरवाजा भेड़ दिया और दोबारा बिस्तर पर बैठकर टीवी की तरफ मुतवज्जे हो गई। वो नासिर को देखे जा रही थी जिसका चेहरा सता हुआ था और उस पर हवाइयां उड़ रही थीं। डिप्टी डायरेक्टर बता रहा था कि इस गिरोह के ये लोग मुख्तलिफ हरबों से नौउम्र लड़कियों को अपने जाल में फांस कर पहले उनसे दोस्ती करते, फिर उन्हें दोस्ती का झांसा देकर अपनी साथी लड़की के फ्लैट पर बिलाकर उनकी नाजेबा फिल्में बनाते और बाद में उन फिल्मों की तशहीर करने की धमकी देकर वो उन्हें ब्लैकमेल भी करते थे। नासिर खुश शक्ल नौजवान था। इसके झांसे में आकर कुछ लड़कियां अपना सब कुछ लिटा देती थीं क्योंकि ये उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुतासिर करके ये यकीन दिला देता था कि वो जल्द ही उनसे शादी कर लेगा। इस मुआशरे में नासिर जैसे शैतान सिफत लोगों की एक बड़ी तादाद पैदा हो गई है। ये मजबूर, बेकिस और अच्छी जिंदगी गुजारने के लालच की ख्वाहिशमंद लड़कियां ढूंढकर उन्हें शीशे में उतार कर तबाह कर देते हैं। इस तरह के कामों में मुलव्वस लोगों की भी दर्जाबंदी है। उनमें से चंद तो महज अपनी तस्कीन और दोस्तों पर रोब डालने के लिए एक साथ कई लड़कियों से दोस्ती करते हैं। दूसरे नासिर जैसे हैवान और बेज़मीर लोग होते हैं। ये लोग भोली भाली और इंडियन ड्रामों और फिल्मों से मुतासिरा लड़कियों को अपने जाल में फांस कर उन्हें अपना जरिया माश बना लेते हैं। वो न सिर्फ उनकी काबिल एतराज फिल्में बाहर के मुल्कों में बीच कर रकम कमाते हैं बल्कि इन लड़कियों को भी डरा धमका कर उनसे भी रकम ऐंठते हैं। अगर लड़कियां रुपए ना दें तो ये उन्हें धमकी देते हैं कि वो सारे सबूत सोशल मीडिया पर लगा देंगे। इस काम के लिए उन्होंने किराए पर एक फ्लैट ले रखा था और इसी फ्लैट में लड़कियों को लाया जाता था। नासिर मुतासरा लड़कियों से ये कहता था कि ये फ्लैट इसकी बड़ी बहन का है। बेवकूफ लड़कियां इसकी बात का यकीन कर लेती थीं। वो ये कहकर उन्हें इस घर में बुलाता था कि इसकी बहन इसकी होने वाली बीवी से मिलना चाहती है ताकि फैसला कर सके कि वो लड़की इसके भाई के लिए मुनासिब है भी कि नहीं। वो लड़की इसकी बहन नहीं बल्कि इस मकरू धंधे में मुलव्वस इन लोगों की साथी है जिन लड़कियों को ये लोग ब्लैकमेल करते थे।
उनसे वो उनकी सहेलियों के मोबाइल नंबर भी जबरदस्ती हासिल कर लिया करते थे। फिर नासिर एक महज़िब और शाइस्ता नौजवान बनकर उनसे राब्ता करता और थोड़े ही दिनों में उनके मजीद शिकार पैदा हो जाते। साइबर क्राइम के डिप्टी डायरेक्टर ने यह भी बताया कि मुजरिमों को पकड़ने की ये सारी कार्रवाई फरखंदा नामी एक लड़की की शिकायत पर अमल में लाई गई थी। वो इन लोगों की ब्लैकमेलिंग के हाथों सख्त परेशान थी। वो किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी जहां से इसे 15,000 रुपए माहाना मुशाहरा मिलता था। उन 15,000 रुपयों में से इसे हर माह 5,000 रुपए नासिर को देना पड़ते थे। वो लड़की दुनिया में अकेली थी। कुछ अरसा पहले इसकी मां का इंतकाल हो गया था। वो अब इसे अपने मजमूम मकासद के लिए बाहर के किसी मुल्क भेजना चाह रहे थी। वो उन हालात से बहुत तंग आ गई थी और फिर इसने एक बहुत अच्छा फैसला कर लिया और हिम्मत करके कानून से मदद हासिल की। इसकी नशंदी पर इस फ्लैट पर छापा मारा गया और वहां से कई जदीद कैमरे, 4 लैपटॉप, बहुत सी हार्ड डिस्क्स और दूसरी काबिल एतराज अशिया बरामद कर ली गई हैं। वहां से कुछ ऐसी सुकून बख्श अद्वियात भी मिली थीं जो ये लोग लड़कियों को मशरूबात में डालकर पिलाते थे। ये दवाएं उनके असाब पर असर डालकर उनकी सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब कर लेती थीं। लैपटॉप में सैकड़ों लड़कियों की मुखर्रब अल-अखलाक तस्वीरें और फिल्में मौजूद हैं। शाहिदा दम बखुद बैठी ये तमाम बातें सुन रही थी जब टीवी में कैमरा रखशंदा नामी लड़की पर आया तो बावजूद उसके कि इसने निकाब से अपना चेहरा छुपा रखा था, शाहिदा ने इसे इसकी आंखों से पहचान लिया। वो इसकी बचपन की सहेली फरखंदा ही थी। इसे एहसास हो गया कि नासिर ने कहीं इसे रखशंदा के साथ देख लिया होगा और डरा धमका कर उसका मोबाइल नंबर ले लिया होगा। शाहिदा को झुरझुरी सी आ गई। वो जिल्लत और रुसवाई के गड़े में गिरने से बाल बाल बच्ची थी। अब इसे अपना सख्त गिर बाप और बाप के हुक्म पर सर झुका देने वाली माँ बहुत अच्छी लग रही थी। इसके जहन में ये बात भी कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। माँ बाप के फैसलों पर अमल करके औलाद को जिंदगी भर एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहता है और किसी भी बुरे वक्त में उनकी हर तरह की हिमायत और मदद मुयस्सर होती है। दुनिया में तो कदम कदम पर भेड़िए नुमा इंसान मौजूद हैं जो अपने फायदे और नफसानी ख्वाहिशों की तकमील के लिए दूसरे मासूम इंसानों को इंतहाई अजियतनाक तकलीफों से दो चार कर देते हैं और अक्सर तो अपना जुर्म छुपाने के लिए कत्ल जैसे घिनौने काम से भी बाज नहीं आते। उनकी बातों में आकर कैसे कैसे सानेहात जन्म लेते हैं। अच्छी खासी जिंदगियां जहन्नम का नमूना बन जाती हैं। खानदानों की इज्जतें खाक में मिल जाती हैं और ऐसा महज इसलिए होता है कि अपना फायदा नामुनासिब तरीकों से अच्छी जिंदगी गुजारने का लालच और भीड़ के भेस में भेड़िए जैसे लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बहुत सी नासमझ लड़कियां उनके जाल में फंस जाती हैं। अब टीवी पर फरखंदा का बयान चल रहा था। इसने बड़ी तफसील से नासिर और उसके दोस्तों के जराइम का पर्दा चाक किया था। आखिर में इसने इस बात का एतराफ भी किया कि नासिर की धमकी के नतीजे में इसने भी अपनी एक सहेली का मोबाइल नंबर इसे दे दिया था जिसका इसे बेहद अफसोस था, मगर खुशी इस बात की थी कि वो सहेली इस शैतान के जाल में नहीं फंसी थी। शाहिदा ने लरजते हाथों से रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया और बिस्तर पर गिर पड़ी। वो इस बात पर शुक्र अदा कर रही थी कि वो एक बहुत बड़ी तबाही और बदनामी से बच गई थी। वो सोचने लगी कि लड़कियों के लिए दुनिया में सिर्फ माँ बाप, बहन भाई और शौहर ही होते हैं जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। बाकी गैर तो सब बेदर्दी से अपना मुफाद निकालना जानते हैं। तमाम लड़कियों को माँ बाप, भाई बहनों और शोहरों की इज्जत को मुकद्दम रखना चाहिए क्योंकि ये सब उनके मुहाफिज होते हैं। जब उन सब की इज्जत को मुकद्दम रखा जाएगा तो तब ही उन इंसान नुमा भेड़ियों और शैतानों से महफूज रहा जा सकता है। थोड़ी देर बाद जब इसकी हालत संभली तो इसने अपना वो ही छोटा सा मोबाइल उठाया और वजाहत का नंबर मिलाने लगी। नंबर मिला तो इसके कुछ कहने से पहले ही इसके कानों में वजाहत की हैरत भरी आवाज, शाहिदा खैरियत तो है, कैसे फोन किया? इसने बोलने की कोशिश की तो आवाज़ा जैसे हल्क में अटक गई। इसने खंखार कर गला साफ किया और बोली छठी के बाद, आकर मुझे ले जाइएगा, मेरा दिल नहीं लग रहा है, मुझे अब उम्मी और अबूहा बहुत याद आ रहे हैं। ये कहते कहते इसकी आवाज़ बेउरा गई थी। दूसरी तरफ चंद लम्हों तक तो खामोशी छाई रही, फिर उसके कान में वजाहत की शोख आवाज़ सुनाई दी, भाड़ में जाए छठी में अभी आ रहा हूँ जी, अच्छा मैं तैयार बैठी हूँ। शाहिदा ने अपने आंसू जब्त करते हुए एक दिलफरेब हंसी के साथ कहा और फोन बंद कर दिया। अपना सामान बैग में डालते हुए वो सोच रही थी कि अपने माँ बाप और शोहरों की इज्जतों का ख्याल रखने वाली लड़कियों की जिंदगी कितनी काबिल रश्क होती है। वो शादी से पहले अपने माँ बाप के घर में बड़ी इज्जत और एहतराम से वक्त गुजारती हैं और शादी के बाद मरते दम तक अपने शौहर के घर में वो लड़कियां जो अपनी इज्जत के इन रखवालों की कदर नहीं करती। नासिर जैसे शैतान और दरिंदा सिफत लोग कदम कदम पर घात लगाए बैठे होते ही